I am Bhavagrahi Pradhan, Assistant Professor of Education, Jain Vishwabharati University, Ladnu, Rajasthan. I am going to express my lecture on title Cognitive Psychology and Intelligence, which is under the curriculum of Master of Education in Directorate of Education, Distance Education, Jain Vishwabharati University, compulsory paper, third, psychological dimension of education, and unit fourth, cognitive psychology and intelligence. I am going to express the ideas regarding to cognitive psychology. It means Sanjnanatmak Manovigyan. It is known as the branches of psychology which deals with cognitive or mental aspects of human beings. There are several aspects of human beings mainly relating to the cognition, which relates to different process of mental conscience. Cognitive process also comprises thinking, reasoning, attention, concept formation, problem solving, decision making. चिंतन, रीजनिंग तर्क करना, अटेंशन ध्यान आकर्षण करना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन संप्रेता निर्माण करना, समस्या समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग कोई भी निष्पादन करना, all comes under cognitive process or the mental process of the child or individuals. Thinkings express different type of thinkings arises the minds of the individual. ये चिंतन अलग अलग प्रकार की है, जैसे एक चीज में और एक वस्तु और पदार्थ और कंसेप्ट बारे में बार बार गहन से चिंतन करना और चिंतन अलग अलग तरीके से एक ही विषय बिंदु पर और एक ही विषय वस्तु पर चिंतन करना, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है. चिंतन mainly two types. One is convergent thinking. There are two types. One is convergent thinking, which is known as intelligence or buddhi, and another part of thinking, that is divergent thinking. It is also known as creativity. It is, in other words, creativity is called as creative thinking. Thinkings mainly classified in both of way. One is convergent, another is divergent. Convergent means you think deeply about a particular object or a particular things or particular events. Divergent, it means you think one particular object or particular events or particular individuals behavior in a different way, in different manner. That is called divergent. Srajnatmakta, or it is known as creative thinking. When the concept arises the minds of the child or any individuals, before the concept or संप्रेत्य, जब एक विद्यार्थी और बालक की किसी भी वस्तु और पदार्थ और एनी थिंग्स ऊपर उनकी चिंतन होता है, the concept refers to the generalized image or idea which stands for a group of objects that have some common characteristics, object, person or events. Mainly you think about anything, the concept refers to his image or idea. किसी भी वस्तु
और किसी भी वस्तु की प्रतीक और छवि, और इस वस्तु की जो आइडियाज है उनकी बारे में जो सोच विचार है, which stands for a group of objects that have some common characteristics. ये वस्तु और पदार्थ और एनी व्यक्ति विशेष के ऊपर आपकी संप्रति कैसा है, आप कैसे आइदर आप उसको एक वस्तु के हिसाब से समझ रहे हैं और एक व्यक्ति के हिसाब से समझ रहे हैं, और इसको आपने कोई घटना के रूप में समझ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, not image of a picture of a man, but to all man all the particular individual. On the screen, there are some geometrical figure, we draw a picture. It has its own concept, that is concept of man. There are two eyes, two ears, one mouth, one nose, which is just a particular figure. हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर को, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर को लेते हुए हमने एक ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिविजुअल की संरचना संप्रति निर्माण किए. ये म्यान, हम जब व्यक्ति बारे में सोचते हैं, जब व्यक्ति का चित्र, व्यक्ति का नाम और व्यक्ति का व्यवहार से ही पहचान होता है, ना केवल एक ही व्यक्ति होता है, वो समग्र व्यक्ति का और मतलब समग्र मनुष्य समाज की वो प्रतीक है. हम किसी वस्तु बारे में जब सोचते हैं, सपोज पीपल की पेड़ है, तो पेड़ इन द सेंस पेड़ की संरचना, पेड़ की पिक्चर और पेड़, real tree, there are some branches, some leaves, fruits, roots, trunks, etc. ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन माइंड्स में आता कैसे? हम किसी के बारे में जब सोचते, सोचने के लिए चिंतन करते, मनन करते, निधिध्यासन करते, और उसके बारे में बार बार हमारा मानसिक स्तर में उसको रिकल करते, प्रत्यास्मरण करते, तो हम उसके एक प्रारूप हमारा न्यूरॉन्स में फिट हो जाता, आइदर अकोमुलेट हो और असिमिलेट हो, मगर उसकी छवि हमारा मानस में आ जाता. There are mainly two types of concepts. ये संप्रत्य ह्यूमन बीइंग के माइंड में दो प्रकार के रूप में आता है. एक तो सहज रूप में, दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ और वो किसी भी स्थान बारे में यदि आपको प्रश्न किया जाए तो आपके मन में सामान्य रूप में उसकी ऑब्जेक्ट, एस्पेक्ट्स और इमेजिनरी थॉट्स और आइडियाज आ जाता. और दूसरा था कॉन्सेप्ट एज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आता है. ए ट्री, एक पेड़ बारे में सोच रहा है, व्हिच ट्री इट इज, व्हाट कलर इट इज, इसके फूल कैसा है, उसके फल कैसा है, ये इंसान के लिए कैसी उपयोगी है. ये सब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हमारा माइंड में आता है. सिंपल कॉन्सेप्ट तो यही था, जे किसी भी पेड़ बारे में आपका संरचना है, जो पेड़ इस प्रकार की होता है. और दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ये है जे वो पेड़ कितना दरकारी है, वो पेड़ कितना यूजफुल है, वो पेड़ कितना हाइट के है, वो पेड़ में पत्ती कैसा आई है और उस पेड़ में फल कैसा है, वो फल यूजफुल कि नहीं यूजफुल है, वो कौन सा महीने में उस पेड़ का फल आता है, फूल आता है, आदि आदि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है. सिंपल कॉन्सेप्ट
एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, एक कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट्स के रूप में, एक कॉन्सेप्ट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जिसको आपने कहते इमेजिनरी मतलब आप उसको भावना और कल्पनातीत और कल्पना स्तर में, चिंतन स्तर में, निधिध्यान स्तर में आप किसके संरचना को ले रहा है। हम जब डेजर्ट का बात करें, जब मरुभूमि और मरुद्यान की कॉन्सेप्ट कैसा है, कोई अनजान व्यक्ति को जब हम मरुभूमि और मरुद्यान के बारे में पहले से बताएंगे तो उनका माइंड में कॉन्सेप्ट एक अननोन व्यक्ति के हिसाब से आ रहा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेजर्ट जहां बड़े बड़े टील होगा, सैंड ड्यून्स, जहां ड्राई प्लेस होगा, जहां पेड़ पौधा बहुत कम होगा, जहां कैमेल और जो डेजर्ट में रहने वाला पशु पक्षी आदि रहते होंगे, जहां पीने का पानी का कम उपयोग हुआ होगा और जहां लोग और जनबसती और लोग की डेंसिटी कम होता होगा, ऐसे संरचना माइंड में आता होगा। अब इसमें एक पिक्चर दिया गया है, एक छवि है डेजर्ट की। इसको लेते हुए इसमें सैंड ड्यून्स भी है, देयर आर सम सैंडी एरियाज है, कैमल्स भी है, आदि आदि कॉन्सेप्ट है। जब हमारा माइंड में कोई नया एनिमल्स कोयला, ए न्यू एनिमल्स, जब चाइल्ड का माइंड में कोयले का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उन कॉन्सेप्ट को लाने के लिए उनका तस्वीर में पहले संरचना होगा इस प्रकार की हो सकता है, 2 आंख हो, एक नाक हो, एक माउथ हो, एक हाथ हो, ऐसे ऐसे उनका रूप हो, आदि आदि संरचना आता है। किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु हो, किसी पदार्थ हो, किसी बर्ड्स बारे में हो, एनिमल्स बारे में हो, कोई स्थान बारे में हो, कोई सिचुएशन बारे में हो, जब कॉन्सेप्ट अपना माइंड में आता है, आइदर वो पहले से जानकारी में है कि अनजान में है। जब हमारा कंसेप्ट पेंगुइन बाढ़ की तरफ से आता है, जो पेंगुइन कैसा है, सपोज एक व्यक्ति उसको देखा नहीं, उनका माइंड में आया जो पेंगुइन एक पक्षी है, ये देखने में ऐसा है, सोना है, मगर उनका माइंड में एक कंसेप्ट आया, ये चित्र को पहले उनका माइंड में एक अलग प्रकार की आता है, जो पेंगुइन का कंसेप्ट इस प्रकार की। अब रेगिस्तान में रिवर एक कंसेप्ट है। कभी व्यक्ति विद्यालय स्तर में हो, महाविद्यालय स्तर में हो और विश्वविद्यालय स्तर में हो, नदी और लहर रेगिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट उनका माइंड में जब आता है, जे ये नदी कैसा है, उसमें पानी होता है, 2 किनारा होता है और उसके साथ सब जलजीव भी है, तो उनका माइंड में रिवर की कॉन्सेप्ट इस प्रकार की आता है। कोई पहाड़ी से झरना आया, कुछ झरना मिलावट होके बहुत बड़ा रूप लिया, बड़ा रूप लेके बड़ा महानदी आदि समुद्र में जो पानी के स्तर में मिलावट हुआ, ये आदि संरचना और संप्रत्य उसका मन में आया। अब जब किसी भी पेंटिंग और छवि, यदि आपको कहा जाए जे आपने कोई पेंटिंग का संप्रत्य निर्माण करे, आपके मन में पेंटिंग जिसमें एक छोटा सा घर हो, तितली भी हो, फूल भी हो, झरना भी हो और कलरफुल हो, चिड़िया भी हो, ये आदि आदि पेंटिंग आपका माइंड में आया। कॉन्सेप्ट एक मन की चिंतन है, आइदर कल्पनातीत चिंतन है और पूर्वातीत जो आपका अतीत में बीता हुआ इवेंट्स है उसके प्रति चिंतन है। अब कॉन्सेप्ट जब पेंटिंग के तरफ ले रहा है, ये पेंटिंग कैसा ही है, दिस इज
your concept regarding to the painting. It may be color, it may be some creative art, etc. Now question arises, what is intelligence? बुद्धि क्या है? उससे पहले हमने इस बात पर चर्चा की है जी बुद्धि कन्वर्जेंट होता है, ये थिंकिंग, ये चिंतन की एक इकाई है जो एक ही वस्तु और एक ही इवेंट्स के बारे में बार बार गहन से डीप टू डीप थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग्स, दैट इज इंटेलिजेंस. When you thinks about a particular individual, either he is an intelligent man or a police. Those person who think fast then speak, we can say that individual is an intelligent man or individual. Those are speak fast then think, then we can say he or she is a policeman. पुलिस पर्सन, जिसको आप हिंदी में बेवकूफी कहते हैं, बुद्धिमता और बुद्धिमान और बेवकूफी, जो पहले बोल देता है और उसके बाद में सोचता है किसी भी वस्तु और किसी भी वाक्य, किसी भी कंसेप्ट बारे में और पश्चाताप करता है, वो बेवकूफ हुए. और जो पहले सोचता है, तोलता है, उसके बाद बोलता है, हम उनको कहेंगे ये बुद्धिमान है और बुद्धिमती है और इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, आप ऐसे कहेंगे. और इसमें से कुछ इंटेलिजेंस की कैटेगरी हमने 3 प्रकार की एक्सप्लेन की है. हम जब क्लासरूम के हिसाब से उसको सोचेंगे, व्हाट इज इंटेलिजेंस? दोज आर एडवांस लर्नर्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर गिफ्टेड advanced learner in the class. Very few students are slow learners. Maximum students are in average learners. जिसको आप कहते हैं मंद बुद्धि, स्लो लर्नर्स, उच्च बुद्धि, जिसको आप कहेंगे इंटेलिजेंट और गिफ्टेड, एंड मध्यवित्त स्तर की विद्यार्थी, ऐसे मिलते हैं. हम बुद्धि को परिभाषित करते हुए पहले हम सोचेंगे What is intelligence? What are its objectives? उद्देश्य क्या है? How do we measure intelligence? हम इंटेलिजेंस को माप पाएंगे ना नहीं पाएंगे? इसका मेजरमेंट है या नहीं है? Who are the children whose intelligence sets them apart from their aspects? We can call as the objectives or the modules of the objectives of the class. When you think on your own, आप अपने बारे में सोचिए. How do you define intelligence? हम बुद्धि को कैसे परिभाषित करेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? As a layman knows that intelligence itself the mental power of individual, but as a psychologist, we interpret it in another way. Is it the ability to use reason and logic? इंटेलिजेंस और बुद्धि व्यक्ति का वो गुण है, वो क्षमता है जो तर्क भी करने का और आर्गुमेंट करने का, रीजनिंग देने का, तार्किक सोच विचार करने का क्षमता बढ़ाता है. It is the ability to write and speak clearly. बुद्धि वो है जो व्यक्ति का वो क्षमता है जो लिखना और बोलने के लिए भाषा के माध्यम से और भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए, क्लियरली बोलने के लिए और लिखने के लिए सुराग जुगाता. Is it limited one's performance in school? Intelligence is not limited to one's performance in school. Is it behavior in social situation? How about knowing when you are wrong?
there is no individual who is an errorless man in the world. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एररलेस है ये विश्व में। तो उस एरर को जानकारी करने के लिए और कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो जो क्षमता हमारा अंदर में है वो है बुद्धि। Not that simple or right. There are many psychological theories about intelligence that we will examine in this module. How do we know intelligence even exists? Psychometricians specialize in measuring psychological characteristics for intelligence and personality by using patterns of test scores. They have found evidence for general intelligence as well as specific abilities or specific intelligence. How can we assess intelligence? हम बुद्धि को कैसे मापेंगे, कैसे अनुभव करेंगे जी ये बुद्धि का स्तर कैसा है, किस प्रकार की बुद्धि है, और आइदर ये विशेष रूप में है और सामान्य रूप में है। मगर विद्यार्थियों में और शिक्षकों में जो बुद्धि है वो सामान्य स्तर की बुद्धि है और किसी स्पेशल क्षमता संपन्न बुद्धि है। इन दिस कॉन्सेप्ट हमने बुद्धि का परिभाषीकरण करते हैं। व्हाट इज इंटेलिजेंस? यदि हमारा माइंड में ऐसे क्वेश्चन आता है कि बुद्धि सचमुच है क्या? इंटेलिजेंस is an inferred process that humans use to explain the different degrees of adaptive success in people's behavior. बुद्धि वो है जो अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग अचीवमेंट को और जो आपकी सक्सेस, आपकी अनुभव के तौर पर जो अचीवमेंट हुआ उसको प्राप्त कराने के सहायक होता है, वही आपका बुद्धि। द मेंटल एबिलिटी दैट एनेबल्स वन टू adapt to shape or select one's environment. It is also known as the ability to judge, to comprehend and reason. Intelligence is the ability to understand and deal with people, object and symbols. Either व्यक्ति किस व्यक्ति विशेष से हो, किसी वस्तु से हो, कुछ प्रतीक से हो, और प्रतीक को समझने के लिए जो क्षमता प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त करता है, वही बुद्धि। The ability to act purposefully, to think rationally and deal effectively with the environment. बुद्धि वो है जो परिवेश में, जो अपना परिवेश में है, व्यक्ति को कुछ लक्ष्यपरक चिंतन के लिए मजबूर करता है, क्षमता देता है, क्षमता प्राप्त करता है, दक्षता बढ़ाता है, किसी चीज को सोचने के लिए, सही तरीके में सोचने के लिए खुराक जगाता है, कोई कार्य को डील प्रभावी रूप में करने के लिए इनपुट देता है, वही है बुद्धि। The ability to act purposefully, think rationally and deal effectively with the environment. In other words, intelligence is the capacity or ability to adapt the individual with its society. समाज में खुद को समायोजित करते हुए रहने का क्षमता है और उसका जो कैपेसिटी है वही है बुद्धि।